یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سالہ سابقہ فوجی ہے، مجھے تو گوریلا لگتا ہے۔ رات پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے کیا کیا اور روی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں خود وہاں موجود تھا اور جب کیپٹن نے اس پر فائر کیا تو کسی چھلاوے کی طرح یہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے تو بڑا خطرناک لگتا ہے یہ۔ اس کی خطرناکی تو ہم ابھی نکال دیں گے کمرل، تم فکر ہی نہ کرو۔ یہ آواز اگلی نشست سے آئی تھی۔ ارے عمران بھائی، تم کہو تو اسے ابھی سیدھا کر دوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے نوجوان نے میری پسلیوں میں کوہنی رسید کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں، اسے جان سے نہیں مارنا ہے، ابھی تو اس سے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوں گی۔ ویسے بھی اتنی مشکل سے ہاتھ لگنے والی چیز کو آسانی سے ضائع نہیں کیا جا سکتا، ڈرائیور نے کہا، جس کا نام شاید عمران تھا۔ ہاں عمران بھیا، واقعی بڑی مشکل سے ملا ہے۔ فوجی تو رات بھر اور پھر صبح کو دیر تک اس کی لاش تلاش کرتے رہے اور آخر مایوس ہو کر چلے گئے کہ یہ زندہ ہے اور ضرور فرار ہو گیا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ وہ تو صبح کو میں ایک کام سے نورل دادا کے گھر گیا تو یہ وہاں نظر آ گیا اور میں نے آپ کو بھلا لیا۔ اگر یہ بھاگ جاتا تو بڑا نقصان ہو جاتا ہمارا۔ میرے برابر بیٹھے دوسرے نوجوان نے خود ستائشی کے انداز میں کہا اور ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ مکتی باہنی کے لوگ تھے اور رات کے واقعے میں پکڑے جانے والے اپنے ساتھیوں کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ کمرل کی بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ مکتی باہنی کے نوجوان عام بنگالیوں کے روپ میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ ضروری معلومات اپنے ساتھیوں کو پہنچاتے رہے تھے۔ میں ان کی طرف سے غافل نہیں تھا اور غیر محسوس انداز میں اپنی رہائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر لی تھیں اور کسی بھی وقت ایک لمحے میں انہیں اتار سکتا تھا۔ میرے ہمسفروں کے درمیان اطمینان سے گفتگو جاری تھی اور فاصلہ بھی تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ گھومتے ہی ڈرائیور کے منہ سے اوہ کا لفظ نکلا۔ فوراً میرے کان کھڑے ہوئے۔ چھٹی حس نے بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈرائیور نے دبے دبے سے لہجے میں اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ ہمارے تعاقب میں ایک فوجی جیپ آ رہی ہے، ہتھیار سنبھال لیے جائیں۔ اس نے مزید کہا، ہم کوشش کریں گے کہ تصادم کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو بے دریغ سب کو بھون دینا اور اسے بھی۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان کا فیصلہ سننے کے بعد میں نے خود کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے ایک گٹھڑی کی صورت میں سیٹ کے نیچے دھکیل دیا گیا تھا اور اب دونوں نوجوانوں کے پاؤں میرے کندھے اور کولے پر رکھے ہوئے تھے۔ میں پہلو کے بل لیٹا تھا اور میرے ہاتھ سیٹ کے نیچے تھے۔ میں نے گسمساہٹ کا اظہار کیا، جیسے ان کے پیروں کا وزن میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، لیکن دراصل اس حرکت کے درمیان میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ میں نے فی الوقت ہاتھوں کو اسی پوزیشن میں رہنے دیا اور ٹانگوں کو سمیٹ لیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس پوزیشن میں پڑے ہوئے خاصی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ میرے ہلنے جلنے پر دونوں نوجوان جنجلا گئے تھے اور دونوں نے گالیوں اور ٹھوکروں کی صورت میں اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ان کی جنجلاہٹ کا ایک سبب وہ آواز بھی تھی جو ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ فوجی جیپ کے ہارن کی مسلسل آواز تھی جو غالباً کار کو رکنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پھر ایک کرخت انسانی آواز بھی فضا میں گونجی۔ کوئی فوجی میگا فون پر کار کو رکنے کا حکم دے رہا تھا، مگر ڈرائیور نے اس کی حکم کی پرواہ کیے بغیر کار کو اور زیادہ تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ حکم عدولی پر فوجی جیپ سے ایک بار سخت وارننگ دی گئی اور ساتھ ہی فضا لائٹ مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ کئی گولیاں کار سے ٹکرائیں اور کار کا پچھلا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اس اچانک افتاد سے ڈرائیور کا ہاتھ ذرا سا بہکا، کار تھوڑا سا لہرائی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور چلا کر اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم دیا۔ میرے اوپر بیٹھے دونوں نوجوانوں نے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے سٹین گنوں کی نالیاں نکال کر فوجی جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ ادھر سے بھی جوابی فائرنگ ہوئی، گویا میدان جنگ گرم ہو گیا تھا۔ میری طرف سے ان کی توجہ وقتی طور پر ہٹ گئی تھی۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جلتی سی آنکھوں کی پٹی کھول ڈالی۔ منہ سے کپڑا نکالتے ہی میں نے تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لیے اور کچھ کر گزرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، فوجیوں کی طرف سے چلائی جانے والی کوئی گولی کار کے پچھلے ٹائر میں گھس گئی۔ فضا میں ایک دھماکہ گونجا اور تیز رفتار کار لڑکھنیاں کھاتی ہوئی سڑک سے نشیب کی طرف گرتی چلی گئی۔ مسلح افراد کبھی میرے اوپر اور کبھی نیچے ہوتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ سٹین گھنے چھوٹ کر نہ جانے کہاں جا گری تھی۔ کار بھی خاصی گہرائی میں جا کر جھاڑیوں میں الٹی دھنس گئی۔ دونوں نوجوان میرے نیچے دبے ہوئے تھے اور درد سے کراہ رہے تھے۔
चोटें तो मेरे जिस्म पर भी आई थी, मगर मास्ट्रोस्की की तरबियत ने जिस्म को इतना फौलाद बना दिया था कि इनका एहसास किए बगैर जल्दी से टूटे हुए शीशे से मैं निकला और घनी झाड़ियों में रुपोश हो गया। कार कुछ इस पोजीशन में गिरी थी कि पिछला हिस्सा सड़क की तरफ से नजर आ रहा था, जहां यकीनन फौजी जीप खड़ी होगी, बल्कि अब तो फौजियों ने कार की तरफ दौड़ भी लगा दी। मैं झाड़ियों में घुसते ही किसी चौपाए की तरह चारों हाथों पैरों पर भागता हुआ उस जगह से दूर चला गया। खासे फासले पर जाकर मैं रुका और जमीन पर लेटकर सांस दुरुस्त करने लगा। मेरा अंदाजा था कि फौजी यहाँ तक मेरा पीछा नहीं करेंगे, और मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। थोड़ी देर बाद ही मैंने फौजी जीप के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। वो शायद वापस छावनी की तरफ चली गई थी। कुछ देर मैंने इंतजार किया, इसके बाद उठा और अंदाजे से सड़क के साथ साथ ढाका की तरफ चलना शुरू कर दिया। काफी आगे जाकर मैं सड़क पर आ गया। मेरा हुलिया अजीब हो रहा था। जिस्म पर एक पुरानी सी लुंगी और फटी हुई बुनियान थी। कंधे और बाजू पर लगने वाली खराशों से खून रिस कर जम चुका था। चेहरा और बाल गर्द आलूद हो रहे थे। पाँव में चप्पल नाम की कोई शय नहीं थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रहा था और किसी गाड़ी के इंतजार में था जो मुझे लिफ्ट दे सके। बहुत देर के बाद एक कार सड़क पर नजर आई। मैंने इसे रुकने का इशारा किया तो जब मेरे करीब आकर रुक गई, इसके अंदर एक दुबला पतला 50 बरस का इंसान मौजूद था। कुर्ता पजामा पहने और बारीक फ्रेम का चश्मा लगाए वो खासा स्मार्ट लग रहा था। बाल भी सलीके से घड़े हुए थे। मेरी तरफ तजस्सुस भरी नजरों से देखते हुए गर्दन हिलाकर पूछा, क्या बात है, कहाँ जाओगे? इसके लहजे से मैं फौरन पहचान गया कि वो कोई बिहारी सेठ है। मैंने फौरन इसी के लहजे में जवाब दिया, सरकार गरीब आदमी हूँ, मुक्ति बाहिनी वालों ने अगवा कर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा हूँ, अगर शहर तक ले चले तो इनायत होगी। मुक्ति बाहिनी का नाम सुनते ही इसके चेहरे पर नफरत का तासर उभरा। साला बंगाली लोग, जीना खराम कर दिया है पब्लिक का, इसने जहरीले लहजे में कहा और मजीद कोई तफ्तीश किए बगैर मुझे कार में बिठा लिया। रास्ते भर मौजूदा हालात, बंगालियों के जुल्म और उर्दू बोलने वालों की मजलूमियत का जिक्र होता रहा। मैंने इसे अपनी मजलूमियत की एक दर्दनाक कहानी सुनाई और वो मेरी हद्दुल इम्कान मदद करने के लिए तैयार हो गया, और मेरे मना करने के बावजूद 100 रुपए का नोट मुझे थमा दिया। पैसों की तो मुझे सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने भी ज्यादा इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। ढाका पहुंचकर उसने मुझे शाहबाग होटल के करीब उतार दिया। वहां से मैं बस के जरिए बस स्टैंड पहुंचा। मेरा इरादा मेजर साहब को फोन करने का था, लेकिन इससे पहले कि एक हाकर से मैंने अखबार खरीदा, सरसरी नजर में देख लिया कि मुझसे मुतल्लिक दोनों ही खबरें सफा अव्वल पर शाया हो चुकी थीं। एक खबर में खैर साहिब के बंगले की तबाही से मुतल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात दर्ज थे, और दूसरी खबर जो इससे नुमाया करके छपाई गई थी वो एक पंजाबी फौजी के हाथों एक कमसन बंगाली लड़की की आबरू रेजी की थी। पूरी खबर पढ़कर मुझे शदीद हैरत और दुख हुआ। असल वाकया कहीं जिक्र ही नहीं था। लगता था कहानी पहले से तैयार शुदा थी, जो मंसूबे के मुताबिक बर वक्त छाप दी गई थी। खबर के मुताबिक बंगाल की एक बस्ती में पाकिस्तानी फौज के कई जवानों ने उम्र का लिहाज किए बगैर खवातीन की इज्तिमाई आबरू रेजी की थी, जिस पर अवाम में सख्त इश्तियाल पाया जाता था। इसके साथ ही अवामी लीग के मकामी लोगों की धमकी अमेज बयानात भी दर्ज थे, जिसमें बंगालियों की मजलूमियत, पाकिस्तानी फौज की मजम्मत और भारतीय हुकूमत से मदद की अपील की गई थी। खबरें पढ़कर मेरा दिमाग भुना गया था। इस कदर झूठ, और वो भी इस दीदा दिलेरी से। मुझे अखबार पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिसने खबर की तस्दीक किए बगैर बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया था। मैं सोच रहा था कि क्या आज़ादी सहाफ़त यही मफहूम है कि सहाफ़ी अखलाकी और कानूनी बंधन से आज़ाद हो जाए। छोटे अखबारों की तो क्या बात करें कि वो तो मंडी का भाव देखकर खबरें लगाते हैं, मगर बड़े बड़े अखबारों की तो अपनी ही एक साख होती है। अखबार भी झूठी खबरें लगाने लगें तो फिर आवाम किसका एतबार करेंगे। लेकिन इसी वक्त मुझे एक सहाफ़ी की बात याद आई, जिससे मैंने अपने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था। इसने कहा था, भाई हम भी इंसान हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी जान प्यारी है। हम सच्ची खबर लगाकर अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी की मुखालफत मोल नहीं ले सकते, और इनकी मुखालफत का सीधा सादा मतलब मौत को दावत देना है। हुकूमत सहाफ़ियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में दिलचस्पी ही नहीं लेती, तो फिर वो कैसे सच्ची खबरें शाया करेंगे। मैंने अखबार लिपेट कर इसे हाथ में पकड़ा और टेलीफोन करने के लिए पब्लिक कॉल ऑफिस का रुख किया। मेरी आवाज़ सुनकर मेजर साहब खुशी से उछल पड़े थे। उन्होंने बताया इन्हें खैर साहिब के बंगले की तबाही की इत्तला रात ही मिल गई थी, और वो वहाँ से मिलने वाली लाशों के बारे में मुसलसल पूछ रहे थे। ज़्यादा इम्कान इस बात का ही था कि मैं भी बंगले के अंदर ही दब गया हूँगा, क्योंकि रात को बंगले में मेरी मौजूदगी लाजमी थी। जब से खैर साहब का रवैया बदला बदला सा महसूस होने लगा था, मैंने रातों को बाहर रहने की बजाय घर में रहना शुरू कर दिया था।
ताकि देख सकूं कि अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने गड़बड़ का सुराग लगाया उस दिन बंगला तबाह कर दिया गया। ये तबाही किसने की, किसके इमा पर की और कैसी की, ये सब सवाल अभी तक जवाब तलब थे और उनका जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता था। बहरहाल मेजर साहब मेरे जिंदा होने पर बहुत खुश थे। जब मैंने इन्हें कोड वर्ड्स में अपने आइंदा प्रोग्राम के बारे में बताया तो उन्होंने इससे मुकम्मल इत्तेफाक किया और साथ ही एक शख्स का पता बताया जो मेरी हर तरह से मदद कर सकता था। यहाँ से फारिग होने के बाद मैं सीधा उसी शख्स के पास पहुंचा था। वो कैप्टन बाजार के इलाके में रहता था। इंटरपोल से इसका ताल्लुक था और शौकत साहब का गहरा दोस्त था। शौकत साहब और मेजर साहब के हवाले से इसने फौरन मुझे पहचान लिया और अपने घर के अंदर ले गया। वो अकेला ही रहता था। उसका नाम शहजाद था। अच्छा सेहतमंद जवान, खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश गुफ्तार शख्स था। कद काठ में मेरे ही जैसा था। इसका अपार्टमेंट भी इसकी तरह खूबसूरत और साफ सुथरा था। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने अपना मुद्दा पेश किया तो इसने फौरन वो सब चीजें हाजिर कर दी जिनकी मुझे जरूरत थी और एक अच्छा सा मेकअप बॉक्स, कपड़ों और जूतों के चंद जोड़े थे। मेकअप में तमाम जदीद सामान मौजूद था। मैं फौरन अपने काम में मसरूफ हो गया। 2 घंटे की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये मेकअप भी मैंने आर्जी तौर पर किया था, जबकि असल प्रोग्राम कुछ यूं था। मेजर साहब के मशवरे से मैंने मंसूबा बनाया था कि कमर को बंगले के अंदर ही दफन रहने दिया जाए और इसकी जगह आंद्रे पोव के मिशन पर एक नए आदमी को भेजा जाए जिसका नाम अली होगा। मेजर साहब लाहौर से फोन पर मेजर अयाज और अब्दुल्ला वगैरह को कमर की मौत और अली की रवानगी और मिशन के बारे में सारी तफसीलात बता देंगे और मैं अली के रूप में एक नई शख्सियत के साथ अपने पुराने मिशन पर काम करता रहा हूँगा। इस तरह मेरी जिंदगी का राज मेरे और मेजर साहब के दरमियान होगा। मेजर अयाज और अब्दुल्ला वगैरह मुझे मुर्दा ही तस्वुर करेंगे और उनके साथ ही आंद्रे पोव और दीगर दुश्मन भी मुझे मुर्दा तस्वुर करते रहे होंगे, जबकि मैं इनकी बेखबरी से फायदा उठाकर उनके डेथ मिशन को तबाह करने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे 2 दिन के बाद लाहौर रवाना होना था ताकि वहां से मुकम्मल मंसूबाबंदी और तैयारी के बाद अली के रूप में वापस ढाका आ सकूं। मेरा नया मेकअप लाहौर जाने के लिए ही था। शहजाद ने बताया था कि मेरे जरूरी कागजात शाम तक तैयार हो सकेंगे, इसलिए फिलहाल मेरे पास आराम करने के अलावा कोई काम नहीं था। दोपहर मैंने सोकर गुजारी और शाम को कमरे से बाहर निकला। बाहर की फजा बहुत कठिन महसूस होती थी। हर तरफ सहमे हुए परेशान चेहरे नजर आ रहे थे या फिर नफरतों से बंगाली जवान, बूढ़े, बच्चे जो उर्दू बोलने वालों और पाकिस्तान और फौज का नाम लेने वालों को खूंखार नजरों से घूरते थे। बात पे बात फौज को गालियां देते थे। फौज को देखकर ये बंगला के नारे लगाते थे। ढाका अब चंद बरस पहले वाला ढाका नहीं रहा था। सुकून वाला शहर ढाका जहां प्रेम की गंगा बहती थी, जिसकी मुअत्तर फजाएं अजानों से गूंजती थी, जहां पर एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे कि ताल्लुकात पर रश्क आता था। लेकिन अब यहाँ से सुकून रुखसत हो चुका था। हर तरफ अफरा तफरी और लूट मार का आलम था। खौफ और अफसुर्दगी फिजा पर तारी थी। शहर में जिए बंगला के नारे, नफरत अंगेज जुमले और गोलियों की आवाजें गूंजती थी। आपस में भाइयों की तरह रहने वाले लोग कौमियतों में बट गए थे। कल जिसकी शक्ल देखकर जीते थे, आज इसको मसख कर देने के दर पे थे। ये इक्तदार के भूखे इन सियासतदानों का कमाल था जिन्होंने इक्तदार के लिए भाई को भाई से लड़ा दिया था और अब किसी बड़ी तबाही का सामान कर रहे थे। सादा लोग आंखें बंद किए अपने लीडर के हर हुक्म पर लब्बैक कहते। इसके पीछे पीछे तबाही के घड़े में जाने को तैयार थे। दुश्मन बिल्ली की तरह घात लगाए आंखें मूंद लेने वाले इन कबूतरों को खा जाने के लिए पर तोल रहा था और हमारे हुक्मरान दौराई रावलपिंडी में बैठे चीन की बंसी बजा रहे थे। मैं ज्यादा दूर तक न जा सका और घबरा कर वापस लौट आया। घर में मुतालिया के लिए खासे किताबें मौजूद थीं, लेकिन दिल की गिरफ्तगी के इस आलम में सुकून देने के लिए कुरान पाक से बेहतर नुस्खा भला क्या हो सकता था। मैंने भी सोजो गुदाज के साथ कुरान की तिलावत की और अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगी। रात का खाना खाने के बाद मैं और शहजाद देर तक मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल करते रहे और फिर सो गए। अगला दिन शहजाद ने घर से बाहर और मैंने घर के अंदर रहकर गुजारा। दोपहर के बाद शहजाद आया तो उसने बताया कि तमाम कागजात मुकम्मल हो गए हैं और शाम की फ्लाइट से टिकट भी कंफर्म हो गई है। तमाम सफरी सामान दुरुस्त करने के बाद मैं दोबारा लेट गया और आज के ताज़ा अखबार की नफरत अंगेजियां पढ़ पढ़ कर दिल को जलाता रहा। शाम 5 बजे शहजाद मुझे अपने गाड़ी पर एयरपोर्ट तक छोड़ने आया। मैंने इस वक्त एक अमीरजादे का मेकअप कर रखा था। मेरा लिबास भी ऐसा ही था। एक शोख रंग की शर्ट, तंग पतलून, कीमती जूते, आंखों पर ब्रीक फ्रेम का महंगा वाला चश्मा। मेरा ब्रीफ केस भी
बहुत कीमती था। कार से उतरकर मैं बेपरवाही से चलता हुआ इंतजार गाह में आकर बैठ गया। एक अंग्रेजी महानामे के वर्क की गिरदानी करने लगा। फ्लाइट 5:15 बजे थी। बर वक्त ऐलान हुआ और मुसाफिर उठकर जहाज की तरफ जाने लगे। मैं भी जहाज तक पहुंचा और अपनी मखसूस सीट पर बैठ गया। जब सब मुसाफिर बैठ चुके, हिफाजती पेटियां कस ली गई तो तैयारे ने स्टार्ट लिया और तेजी से जमीन को रोंदता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। परवाज हमवार होते ही लोगों ने हिफाजती पेटियां खोल दी। मशरूबात की ट्रालियां गश्त करने लगी और लोग खुशगपियों में मसरूफ हो गए। मैं भी काला कोला की बोतल चुस्कियां लेते हुए आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। मेरा जहन माजी हाल और मुस्तकबिल के ताने बाने में उलझा हुआ था कि अचानक मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी जो बाथरूम से वापस आ रहा था और अब मुझसे एक रोज छोड़कर अगली सीट पर बैठ रहा था। इसे देखकर मेरी हालत गैर होने लगी थी। मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस शख्स को काबू करने का ये बेहतरीन मौका था। लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि अंद्रेपोव अकेला नहीं था। यकीनन इसका कोई और एक या बहुत से साथी भी इसके साथ सफर कर रहे थे। मैं इसके साथियों को शनाख्त करने की कोशिश करने लगा। मुझे याद आया वो अपनी साथी लड़की के बगैर सफर नहीं करता। मैंने इधर उधर निगाह डाली। इसके बराबर वाली सीट पर भी देखा जहां एक बूढ़ा चीनी बैठा ऊँघ रहा था। जहाज में सिर्फ 3 खवातीन मुसाफिर थीं, मगर मुझे कोई लड़की भी मशकूक नजर नहीं आई। इस बात ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। मैं सोचने लगा कि क्या अंद्रेपोव अकेला ही सफर कर रहा है या इसके रूप में कोई और, क्योंकि वो मेकअप का माहिर था और चंद मिनटों में अपना या किसी का भी हुलिया बदल सकता था। इसे कभी आमने सामने से नहीं देखा था। सिर्फ एक बार शौकत साहब ने एक तस्वीर दिखाई थी जो उन्होंने नामालूम कहां से हासिल की थी। उनका कहना था कि अंद्रेपोव इसी रूप में पाकिस्तान दाखिल हुआ है। इसके पासपोर्ट पर भी यही तस्वीर चस्पा थी। आंद्रे से अपने खुसूसी ताल्लुक की वजह से वो तस्वीर फौरन मेरे जहन पर नक्श हो गई थी और इस वक्त आंद्रे इसी रूप में मेरे साथ सफर कर रहा था। लेकिन जो चीज़ अभी तक उलझन का बायस बनी हुई थी वो वही लड़की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक आंद्रे की ये कमजोरी थी कि वो सफर तन्हा नहीं करता था। आजकल जो हालात चल रहे थे इनमें ये बैदस कियास भी नहीं था कि वो अकेला ही किसी मुहिम पर निकला हो, और ऐसी सूरत में जबकि इसे शक हो कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन खैर साहिब के बंगले के धमाके में हलाक हो चुका है, अपनी मौत से मुतल्लिक मशकूक होने का ख्याल इसलिए मेरे दिल में पैदा हुआ था कि मैं इसके साथियों के हाथ से 2 मरतबा बच निकला था। एक बार रात को जब रवि की टांग टूटी हुई थी और दूसरी बार कार के हादसे की सूरत में। वो अपने साथियों पर हर पल की नजर रखता था। मेरी कारकर्दगी और पुरस्रार फरार के पेश नजर वो इस मफरूजे पर सोचे कि मैं बंगले के हादसे में हलाक होने से बच गया हूँ और अब किसी और रूप में इसके खिलाफ महाज बना रहा हूँ। इस तरह तो ये भी मुमकिन था कि इसे मेरे मौजूदा रूप के बारे में भी इल्म हो और वो मेरे ही ताकुब में इसी हवाई जहाज में सवार हो। ये सिर्फ एक ख्याल ही था जिसके सही होने के भी इतने ही इम्कानात थे जितने गलत होने के। इस ख्याल के जहन में आते ही गैर शऊरी तौर पर मेरे जिस्म के तमाम उज़लात तन गए। दिमाग तेजी से हालात व वाक़यात का तज्जिया करने लगा और ये नजरें मजीद गहराई और तेजी से जहाज में सवार लोगों को जांचने में मसरूफ हो गईं। बहुत देर जायजा लेने के बावजूद भी मुझे कोई बात और कोई शख्स मशकूक नहीं लगा। आंद्रे भी बड़े मजे से सीट पर बैठा किसी रिसाले की वर्क गिरदानी कर रहा था। इसके बराबर में बैठा हुआ चीनी बूढ़ा सो चुका था और जहाज की महदूद फजा इसके हल्के खराटों से मुर्तइश थी। तमाम रास्ते में शदीद जहनी दबाव का शिकार रहा और हर लम्हे किसी हादसे के रूनुमा होने का इंतजार करता रहा, मगर कुछ भी ना हुआ और लाहौर आ गया। मुसाफिरों ने हिफाजती बंद बांधने शुरू कर दिए। जहाज ने शहर के ऊपर एक चक्कर लगाया और रनवे की तरफ झुक गया। जहाज के रुकते ही लोग अपने मुख्तसर से सामान के साथ दरवाजे की तरफ चलना शुरू हो गए। न जाने क्यों अचानक मुझे खतरे का एहसास होने लगा था। छठी हिस्स बड़े वाज़े इशारे कर रही थी। बज़ाहिर हालात मामूल के मुताबिक थे। मैंने तेज और गहरी नजरों से एक बार फिर माहौल का जायजा लेना शुरू किया। जहाज का दरवाजा खुल चुका था, सीढ़ी लग चुकी थी। मुसाफिर एक एक करके तैयारे से बाहर जाना शुरू हो गए थे। आंद्रे भी हाथ में हल्का ब्रीफ केस उठाए बड़े पुरतमाद और बावकार अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ा चीनी ढीली चाल से इसे थोड़े फासले पर लड़क रहा था। मैंने सोचा कि मुझे आंद्रे के साथ साथ चलना चाहिए ताकि वो मेरा ताकुब कर रहा हो या ना कर रहा हो, मगर मेरी नजरों से ओझल ना होने पाए। लेकिन जो ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह बूढ़ा चीनी गैर महसूस तरीके से मेरे रास्ते में हायल हो गया।